Good morning, Jai Hind, and let's start today's class. Okay, once again, I welcome you all. See, okay, yes. So this is our filler farm family, and once again, I welcome you on this filler farm app. As this platform is totally dedicated for the UGC NET JRF, and in India, it is one of the only platform where you can learn, where you can prepare your study for UGC NET JRF. Okay. So here are the uh, charges. We just charge only 2,499 rupees, and you can join us. Okay, we don't charge more. And here I'm your mentor, and today, without getting delay, once again, let me tell you, remind you, Unit 5 is going on. Once again, let me remind you, Unit 5 is going on, and in this unit, we have to cover so many things: language, basic concept, theories, pedagogy, etc. So, in Unit 5, today we are going to discuss language skills, English language skills. What are English language skills? बिना देरी के हम लोग इस टॉपिक को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं. इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. So in English language skill, when we talk about, so what is English language skills? So you see, language, आप देख सकते हैं, लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूड्स LSRW. रिमेंबर these four skills are very important. L means, here you can say listening, speaking, reading, and writing. In English language or literature, especially in English, you have to improve these all four skills. If somebody is having good command over these all four skills, then he is having good command over all English. Okay. So listening, if listening means what? Listening का मतलब ये है जैसे सुनना. मैं अगर अंग्रेजी बोल रहा हूँ, इफ समबडी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आपको उसको सुनना, यानी, लेकिन सुनने के साथ में समझ में आना जरूरी है. दो बातें हैं. कोई नया स्पीकर है, नई लैंग्वेज बोल रहा है ना? तो आप लोग सुन रहे हैं, यूर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है. दैट इज नॉट लिसनिंग, दैट इज जस्ट हियरिंग. ओके. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिसनिंग, लिसनिंग मींस लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, हियरिंग विद अंडरस्टैंडिंग. अगर आप समझकर सुन रहे हैं, देन इट इज लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग. सो लिसनिंग आप कह सकते हैं. दूसरा स्पीकिंग, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगी अलॉट. रीडिंग मन है ना. तो दीज आर फोर स्किल. एंड राइटिंग, राइटिंग मीन्स, सपोज आई एम स्पीकिंग समथिंग, एंड यू हैव टू राइट विदाउट, जस्ट यू हैव टू राइट विद लिसनिंग. You have to write with, and I'm speaking and you have to write. Then what will happen? You have to write correct spelling, है ना? करेक्ट स्पेलिंग के साथ में आपको सुनकर लिखना क्या है? राइटिंग है ना? केवल ये कॉपी करना राइटिंग नहीं है. तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर दी फोर स्किल्स. बात करते हैं जैसे LSRW इज द फोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. क्या है ये? फोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. भाषा को सीखने की ये चार स्किल है. A set of four capabilities that allow an individual to comprehend and produce spoken language for proper and effective interpersonal communication. Interpersonal communication. Student, बेसिकली LSRW क्या है? ये चार स्किल है, यानी ये एक व्यक्ति की कैपेबिलिटीज को दर्शाता है, जो उसको स्पोकन लैंग्वेज में काम आता है या इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काम आता है. व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इट मीन्स दैट वी हैव टू इंटरेक्ट मेनी मोर persons every day. We interact every day. We interact in our family, we interact with our friend, we interact in our surrounding circles, and every day we go outside and we have to interact. If you are having these four skills, LISRW means, and especially speaking skills, if you have, then you can have effective interpersonal communication skill. Speaking plays a very important role. Speaking plays a very important role, and effective interpersonal speaking, yeah, effective interpersonal communication requires more speaking practice. Is that clear? So it is individual capabilities
ये एक तरीके से हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज होती है। आप देख सकते हैं these skills are listening, speaking, reading and writing. So in the context of first language acquisition, first language acquisition का मतलब ये है first language acquisition. Acquisition means to acquire, to learn something. The four skills are most often acquired in in the order of, तो व्हाट आर दी, पहले सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का, यानी जो आपकी मदर टंग है या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी होती है आप जो सीखते हैं, उसमें क्या है, ये चारों स्किल्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसनिंग फर्स्ट। सबसे पहले क्या आता है, हम, है ना, लिसनिंग। जैसे स्टार्टिंग में आप सोचिए कोई बच्चे का जन्म होता है परिवार में, तो व्हाट व्हाट हैपेंस, स्टार्टेड लिसनिंग फर्स्ट। क्या करता है, वो सुनना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद में हम पहले ही दिन से उसको हम पढ़ना या लिखना नहीं सिखाते हैं, पहले अल्टीमेटली फर्स्ट एनीबडी लर्न्स लिसनिंग, देन स्पीकिंग। सेकंड क्या है, स्पीकिंग, स्टार्टेड स्पीकिंग। आप बिल्कुल छोटे बच्चे को आप देखिए, कोई भी, तो पहले सुनना, उसके बाद में स्पीकिंग, एंड देन पॉसिबली रीडिंग, अगर संभव है तो रीडिंग, एंड देन फोर। इसीलिए इसको LSRW टेक्निक कहा गया है। ये, और दिस इज द ऑर्डर, रिमेंबर दिस इज द ऑर्डर, ये क्रम है, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द सीक्वेंस, है ना। यू कैन नॉट, आप किसी को सिखाना है तो पहले राइटिंग फिर रीडिंग, ऐसा नहीं होगा, इट इज, है ना, इट विल नॉट हैपन। हाँ, अगर आप बड़े हैं और आपकी उम्र है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरली आपको सीखना है, दिस इज द ऑर्डर। इस क्रम में आपको सीखना है कि पहले लिसनिंग पे फोकस करें, देन स्पीकिंग के ऊपर फोकस करें, देन रीडिंग एंड राइटिंग। दिस फोर स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं, ये देखिए, आपने देखा होगा फ्रांसिस बेकन साहब का एक ऑफ स्टडीज इनका एक ऐसे है, उसमें कहते हैं कि रीडिंग मेक द फुल मैन, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो यहाँ पर क्या है, रीडिंग का, कॉन्फ्रेंस का और राइटिंग का अपना महत्व यहाँ पर बताया कि रीडिंग से क्या है, व्यक्ति पूर्ण बनता है ना। अगर आप, इफ यू आर रीडिंग कंटिन्यूअसली, देन यू विल हैव प्रॉपर नॉलेज एटसेट्रा। एंड कॉन्फ्रेंस मींस डिस्कशन, मींस स्पीकिंग, है ना। कॉन्फ्रेंस मींस डिस्कशन और स्पीकिंग। इट मीन्स इफ यू आर हैविंग प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग और कॉन्फ्रेंस, तो आपको रेडी बनाता। रेडी का मतलब है कहीं पर भी आपको बात करने के लिए खड़ा कर दिया, ये कहीं पर अपनी बात कहने के लिए आपको खड़ा कर देते हैं, देन you are able to deliver your expressions, you are able to deliver your speech, okay, and that is why conference a ready man and writing an exact man, if you want to be exactly exact का मतलब, जैसे मैंने कहा मैथ, यहाँ पर मैथ की स्पेलिंग है और आपसे बिना देखे आपको लिखने के लिए कहा, तो राइटिंग क्या होगा कि आपको स्पेलिंग करेक्ट होगी, आपको वर्ड्स पे आपके कमांड होगा, वर्ड को सही तरीके से। कॉन्फ्रेंस आपसे मैंने कहा लिखिए कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस अगर आपने पहले लिखा हुआ होगा, राइटिंग से प्रैक्टिस की होगी, तो इजीली आप लिख पाएंगे, अदरवाइज गलत लिखने के चांस होते हैं। दैट इज व्हाई राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, है ना, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इनपुट्स में हम देखिए देखिए कुछ इनपुट्स है, कुछ आउटपुट्स है ना, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, okay, good morning everyone, put your message here, okay. So am I audible, everything is fine, am I audible? Everything is fine? Okay. See, तो आप देख सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन, इनपुट्स क्या है, हम लिसनिंग, है ना, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप लोग जनरली सुन रहे मान ले, तो ये क्या होता है, लिसनिंग का मतलब जनरली क्या होता है, लेकिन सुनने के साथ में आप उसको डिकोड भी कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है, एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग ऑफ एन ऑडियो स्ट्रीम। ऑडियो स्ट्रीम, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप वॉच भी कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग ऑल्सो, लेकिन आप सुन भी रहे हैं, तो यहां पर डिकोड द मीनिंग का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। आपको आवाज तो सुनाई दे रही है,
लेकिन साथ में समझ में आना भी जरूरी है। यू आर लिसनिंग मी, यू आर लिसनिंग माई वॉइस, साउंड इज कमिंग टू यू, बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लिसनिंग। तो लिसनिंग मीन्स एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग ऑफ एन ऑडियो स्ट्रीम। ओके, रीडिंग क्या है ना? तो लिसनिंग का मतलब सिर्फ आवाज को सुनना नहीं है। अगेन लेट मी टेल यू अगेन, है ना, लिसनिंग का मतलब सिर्फ आपको जो है सुनना नहीं है। लिसनिंग का मतलब है सुनने के साथ में समझना भी है। रीडिंग क्या है? रीडिंग ये है, स्टूडेंट, आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, लेट मी टेल यू, ये केवल एग्जाम के पर्पज से नहीं है। आज की ये क्लास आपको जो है, ये जो मैं आज बता रहा हूँ, ये लैंग्वेज स्किल्स, इफ यू वांट टू improve योर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, इफ यू वांट टू improve इंग्लिश, please go through these all practice what I am teaching today. What I am teaching today, that's really more important, रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्किल से है। अगर आपको नहीं पता है कि हमें इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है, दिस क्लास इज फॉर यू, दिस क्लास इज फॉर यू, एंड इफ यू फॉलो दिस क्लास डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। ओके, तो आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग का मतलब क्या है? वन थिंग, एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग ऑफ राइटिंग स्ट्रिंग। रीडिंग का मतलब ये है कि ये जो लिखा गया है, मान ले ये पूरा लिखा गया है ना, ये पूरा जो लिखा गया है, ये आपको, क्या आप में इस लिखे हुए पार्ट को आप में समझने की क्षमता है? ये सब लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागोजी, क्या आपको ये जो लिखा है उसको समझने की क्षमता है? रीडिंग में ये कि आपको ये चीज आप रीड कर रहे हैं। तो दो यहां पर, इसमें एक और चीज मेरी तरफ से ऐड करता हूं, लेट मी। पहला तो ये है कि आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ में वर्ड्स को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को पढ़ते आना चाहिए, नंबर एक। अगेन लेट मी रे, अगर आप पढ़ने में वीक है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर आप पढ़ने में वीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, आपको अंग्रेजी ठीक से पढ़ते आना चाहिए। वन थिंग लेट मी क्लियर, लेट मी टेल यू, इफ यू ठीक है, आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ते आना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है। दूसरा, जो पढ़ रहे हैं आप लोग, जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, उस लिखे हुए को क्या आप जो है डिकोड कर पा रहे हैं, उसके मीनिंग को, उसको समझना भी, सुनते हुए भी समझना, और जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हुए भी समझना, दैट इज लिसनिंग एंड रीडिंग, है ना। अदरवाइज ये लिखा हुआ है, मान ली किसी को अंग्रेजी नहीं पढ़ते आती है, या थोड़ा सा वो अनएजुकेटेड हम कह सकते हैं, या इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, तो ये अभी उनको ये दिखेगा, ये सिंबल्स दिखेंगे, लैंग्वेज के सब क्या है, ये सिंबल्स है, ये दिखेंगे उनको, ये है ना बी सी, उनको ये भी नहीं पता, लेकिन वो डिकोड नहीं कर पाएंगे मीनिंग को। मैं बोल रहा हूँ सुनेंगे, है ना, हमारे पास में सेंस है, सुनेंगे, लेकिन वो डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग, ठीक है। आउटपुट्स, अब ये देखो, लिसनिंग और रीडिंग क्या है, ये आउट इनपुट्स आपसे पूछा जा सकता है। जो लैंग्वेज स्किल है उसमें 4 है, उसमें से कौन यूनिट इनपुट है और कौन यूनिट आउटपुट है? आप देखिए, तो लिसनिंग एंड रीडिंग क्या है, ये इनपुट है। हम लोग क्या करते हैं, जब लिसन करते हैं तब भी इनपुट होता है, रीडिंग करते हैं तब भी इनपुट होता है। अब आउटपुट में देखिए क्या है, पहला स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है, आउटपुट है। तो जितना अच्छा इनपुट होगा, जितना ज्यादा आप लिसनिंग पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप रीडिंग पे फोकस करोगे, डेफिनेटली आपका आउटपुट स्पीकिंग भी उतना ही इफेक्टिव होगा। एज मच यू डू प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, दैट है ना, एज मच यू डू प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, दैट मच यू विल बी हैविंग आउटपुट्स स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो एबिलिटी टू इनकोड, ये देखिए स्पीकिंग का मतलब क्या है, इनकोड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इनटू ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म मतलब बोल करके क्या करना, जो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है, उसको ओरल फॉर्म में क्या करना, इनकोड करना, उसको एक्सप्रेस करना, क्या कहलाता है, स्पीकिंग कहलाता है। और राइटिंग क्या है, एबिलिटी टू इनकोड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इनटू रिटन फॉर्म। भाई ये थॉट्स और कॉन्सेप्ट को हम बोलकर व्यक्त करें तो स्पीकिंग, और लिखकर व्यक्त करें रिटर्न में, है ना, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है, रिटर्न की स्पेलिंग ये आएगा, ठीक है, रिटर्न फॉर्म, तो क्या होगा, वो राइटिंग होगा, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर द बेसिक 4 स्किल्स। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये 4 स्किल्स आपकी जो है, कौन सी स्किल आपकी वीक है, आप इसमें देखिए, आप लिसनिंग कितना करते हैं, रीडिंग कितना करते हैं,
स्पीकिंग की प्रैक्टिस कितनी कर रही है। चारों प्रैक्टिस आपको लगातार करना है। इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस, और हम लोग सोचते हैं कि हमारी अंग्रेजी वीक है, हमको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, ये 4 स्किल्स में से कुछ न कुछ प्रैक्टिस हम छोड़ देते हैं। या तो लिसनिंग बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, या रीडिंग हम नहीं करते हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, और हम चाहते हैं कि अंग्रेजी अच्छी हो जाए। तो बिल्कुल नहीं होगी, आपको ये 4 स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। देन यू विल हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। ओके, अब नाउ इन ये तो बेसिक हमने बता दिया आपको, दिस इज द बेसिक। नाउ लेट्स गो थ्रू दी लेट्स गो थ्रू दी गो थ्रू ऑल दिस लैंग्वेज स्किल्स इन डिटेल। ठीक है, चलिए अब हम इसको विस्तार से करते हैं, है ना, इसको हम डिटेल में देखते हैं कैसे। पहला हम देख रहे हैं लिसनिंग, है ना, चारों स्किल्स को हम डिटेल में देख रहे हैं। लिसनिंग क्या कह रहे हैं? लिसनिंग इज नथिंग बट फॉलोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साउंड। बस लिसनिंग क्या है? फॉलोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साउंड। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, बट यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लिसनिंग जो कर रहे हैं, साथ में मेरे यानी जो साउंड आप सुन रहे हैं उसके साथ में आप मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, है ना, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। Whatever I am delivering, whatever I am explaining, I hope you are getting my voice, you are getting my sound, but I am expecting that you are also understanding. You are also understanding. And one thing, let me tell you, bilingual, I am teaching you Hindi and English both. So if somebody wants to join me, then definitely this is one of the best platform I am giving you. बहुत शानदार पीपीटी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, गुड लिसनिंग इज बिल्ट ऑन एटीट्यूड। देखिए कैसे, गुड लिसनिंग इज बिल्ट ऑन एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट। आपको एक अच्छा श्रोता, देयर इज अ कोटेशन, एक कोटेशन है, वो कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन फर्स्ट बी अ गुड लिसनर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? श्रोता बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ गुड स्पीकर। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। ठीक है, तो लिसनिंग के लिए आपको अच्छा एटीट्यूड चाहिए, अटेंशन चाहिए और एडजस्टमेंट चाहिए। वी आर अवेयर दैट लिसनिंग इज इमोशनल वेयर। देखिए लिसनिंग क्या है? इमोशनल है। वेयर एज हियरिंग इज फिजिकल। ये देखिए अगेन मैंने कहा ना, हियरिंग क्या है? फिजिकल है ना। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। पता ही नहीं हमको, है ना, आई एम हियरिंग या लिसनिंग। अब देखिए यहाँ पर लिसनिंग इज इमोशनल का मतलब है कि हम समझ भी रहे हैं, है ना, हम उसको समझ भी रहे हैं। लेकिन हियरिंग में क्या है? जैसे कि अगेन अगेन कोई व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है और वो सुन रहा है, मैं बोल रहा हूं तो वो सुन रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो केवल वो हियरिंग होगा, लिसनिंग नहीं होगा, है ना। तो हियरिंग क्या है? केवल फिजिकल है। इट इज द बिगर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज द बिगर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हियरिंग। और है ना, ये लिसनिंग क्या है? ये लिसनिंग क्या है? लिसनिंग जो है वो बिगर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। बिगर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन का क्यों ऐसा कहा गया? आप देखिए, हमारे पास में 4 स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो कम्युनिकेशन में चारों है, कम्युनिकेशन में चारों काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिगर पार्ट क्या है? लिसनिंग है। आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पूरे सोसाइटी में आप देखिए, पूरी मानव सभ्यता में ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग जो है, या तो हम लिसन करते हैं या हम लोग स्पीक करते हैं ज्यादातर। ठीक है, या तो हम लिसनिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं। आप देखिए दिन भर में हम कितने लोगों से बात करते हैं और हम सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं। इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स बाय द ब्रेन। ये देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जो हमारा ब्रेन है वो वर्ड्स के क्या करता है? मीनिंग को समझता है, एब्जॉर्ब करता है। या लिसनिंग में क्या है? हमारे ब्रेन का भी काम है, क्योंकि हम जो लिसन कर रहे हैं हमारे ईयर के थ्रू, वो हमें समझ में आना चाहिए, और वो समझ में लाने के लिए हमें ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है। लिसनिंग लीड्स अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडिया। बिल्कुल, लिसनिंग क्या करती है? लिसनिंग से हमें किसी भी फैक्ट को, किसी भी आइडियाज को समझने में मदद मिलती है। एन इंडिविजुअल नीड्स टू बी अ गुड लिसनर। ये देखिए, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्या है? एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, गुड लिसनर। बिकॉज टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली ही आर शी हैज टू लिसन फर्स्ट। क्या करना पड़ेगा उसको? पहले उसको अच्छे से सुनना पड़ेगा। ही आर शी हैज टू लिसन
फर्स्ट, उसको पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा स्पीकर आएगा। ये देखिए, बिकॉज टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली, अगर आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा। वी हैव टू ईयर, देखिए हम फिजिकली भी आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास में दो कान है, वी हैव टू ईयर्स, है ना, आप देखेंगे वी हैव टू ईयर्स। और दूसरा वन माउथ, है ना, वी हैव टू ईयर्स, और दूसरा क्या है, वन माउथ, है ना। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास में दो कान है और एक, वेट, ठीक है, हमारे पास में दो कान है और एक माउथ है, बिकॉज लिसनिंग इज ट्वाइस एज हार्ड एज स्पीकिंग एंड टॉकिंग। बिल्कुल, लिसनिंग क्या है, मतलब स्पीकिंग से ज्यादा कठिन है, दुगुनी कठिन है, इसलिए हमें क्या है, लिसनिंग ज्यादा करना चाहिए और स्पीकिंग कम करना चाहिए। लेकिन हम लोग या वहां के लोग करते उल्टा है ना, है ना। उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं कि बोलेंगे ज्यादा सुनेंगे कम। होना क्या चाहिए, सुनना ज्यादा है बोलना कम है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो द ईयर, है ना, वी हैव टू ईयर्स एंड वन माउथ बिकॉज लिसनिंग इज ट्वाइस एज हार्ड एज स्पीकिंग एंड टॉकिंग। बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग की हम बात करें तो इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू नो द एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जो बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो पहला बेनिफिट यही है कि कोई भी व्यक्ति है उसको ये पता चलता है कि कौन, टू नो द एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, पता चलता, मैंने कोई बात कही, किससे बातचीत कर रहा हूं, तो वो मेरी बात को सुनने के बाद में वो एग्री कर रहा है या डिसएग्रीमेंट कर रहा है। उसको समझ में आएगा तो एग्री करेगा, उसको समझ में आएगा तो ही वो डिसएग्री भी करेगा। कैसे, अगर उसके बात उसके अनुकूल नहीं होगी तो डिसएग्री हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको समझना जरूरी है, मेरे ऑडियो को, मेरे साउंड को, समझ में आ रहा। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का जो एरियाज है वो पता चलता है अगर आप, है ना, ठीक है। दूसरा, इट मिनिमाइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, मिनिमाइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोग अगर प्रॉपर नहीं लिसनिंग करेंगे, है ना, तो लिसनिंग के साथ में उनको समझ में आएगा, है ना। तो इट मिनिमाइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर्स, सबसे बड़ी बात है दूसरों को समझने में मदद करता है। अदर्स व्यूज, ये देखिए, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू, दूसरों के व्यू क्या है उसको समझने में मदद करता है। एंड आल्सो टू डिस्कवर द फ्लॉज इन आवर ओन पोजीशन, ये देखिए, और हमारी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसमें एक नई धारणाओं को जन्म देने में भी मदद करता है लिसनिंग। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स through learning with the help of these he she can achieve his her get goals। ये देखिए, बिल्कुल, it helps an individual to acquire necessary skills। बिल्कुल, लिसनिंग क्या है, नेसेसरी स्किल्स को बढ़ावा देने में भी काम करती है। कोई हम चीज सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सीखने के लिए क्या है, पहले सुनना पड़ता है कहीं पर भी, एंड एज ए स्टूडेंट अगर आप है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ता है और उसके साथ में आपको समझना भी पड़ता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, चलिए। Okay, everything is fine, audio video, okay, yes, good morning, good morning, ठीक है, चलिए। सो what happens, it restarted, wait, once again let me ask you, आप लोग क्लास लगभग 25 मिनट की होना चाहिए, यहाँ पर 13 मिनट बता रहा है, कब से शुरू से क्लास आप लोग देख रहे हैं, यस और नो? वंस अगेन लेट मी कंफर्म, यू आर वाचिंग द क्लास फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं आप लोग? वंस अगेन लेट मी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पता नहीं क्यों, चलिए, ठीक है, विल सी। ओके, इट्स ओके फाइन, है ना। तो अब यहां पर देखिए, इसमें सी, सो
आप देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स की हम लोग ये बात कर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो दीज आर नाउ, इफ एवरीथिंग इज फाइन देन लेट्स मूव अहेड, है ना. चलिए. So these are the benefits of listening skills. Now let us discuss speaking. So speaking is now this is the second more important. This is the second more important skills. And one more thing, let me remind you again कि ये जो skills हैं ये बहुत important है, आपको ध्यान रखना है. Speaking is an act of making vocal sounds. है ना. Speaking क्या है? It is an act of making vocal sounds. Speaking, I am making vocal sounds. I am explaining here, but I am making vocal sounds and you are listening. Okay. So speaking is an act of making vocal sounds. We can understand that speaking means nothing but to converse or to express one's thoughts and feelings in spoken language. Definitely. What is here? Speaking, हम लोग बोल करके अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को स्पोकन लैंग्वेज में यानी बोल करके व्यक्त करते हैं. दैट इज स्पीकिंग. समझ में आ रहा है? तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्पीकिंग मीन्स नथिंग बट टू कन्वर्स और एक्सप्रेस वन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो स्पीक ऑफन इंप्लाइज कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. स्पीक का मतलब ये है, ऑफन इंप्लाइज कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. बिल्कुल, हम क्या करते हैं स्पीकिंग में? हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. स्पीकिंग स्किल्स आर द स्किल्स दैट गिव अस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. स्पीकिंग स्किल्स आर द स्किल्स दैट गिव अस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट. स्टूडेंट एज इंग्लिश, student of English, let me emphasize you, let me give you the suggestion. Please improve your communication skill. And here I would like to tell you, you have to improve your communication skill and the pronunciation. Work on pronunciation. Right pronunciation is effective. And if you communicate with somebody and having good communication includes right pronunciation also, proper pronunciation also. Pronunciation should be proper as the, है ना, it should be very audible, है ना, it should be audible pronunciation. Speaking में दो बातें कुछ भी बोलना नहीं है. एक तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, कम्युनिकेट. अब इसको ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे आप, है ना. तो आपको जो है कम्युनिकेट, इट शुड बी, देयर शुड बी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड इट शुड बी ऑडिबल फॉर समवन एल्स. इफ somebody is listening there, then it should be audible. Is that clear? So speaking skills are the skills that give us the ability to communicate effectively. ध्यान रखना. तो speaking में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. This skill helps us, the speaker, to express his her message in a passionate, thoughtful and convincing manner. बिल्कुल. तो ये क्या करती है, जो स्पीकर होता है उसको क्या है, अपना मैसेज बिल्कुल पैशनेट तरीके से, थॉटफुल तरीके से या कन्विंसिंग मैनर में एक्सप्रेस करने के लिए मजबूत बनाता है. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपको अपने पेरेंट्स से, फादर से, मदर से कोई बात मनवाना है, आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको मना ना कर पाए, आप चाहते हैं कि आपकी बात को माने, आपको कहीं टूर पे जाना है या कहीं कोई ऐसी कुछ खरीदना है, आपको, यू वांट टू परचेज समथिंग, और आपको पता है कि आपके फादर जरा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन ऐसा है ना, आपका कम्युनिकेशन ऐसा है कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट किया और आपने इफेक्टिवली अपनी बात रखी और क्या है, कन्विंस किया आपने कन्विंसिंग मैनर में, तो डेफिनेटली आपकी बात को मान लिया गया, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है. ठीक है. आगे हम देखें बेनिफिट्स में. तो पहला है स्पीकिंग हेल्प्स अस टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली if you are having good communication skill, definitely it will boost your confidence. Self confidence बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है speaking skills. Again, ये this is the secrets, these are the secrets of self confidence. So speaking helps us to build self confidence. आपको self confidence बढ़ाना है तो आपको क्या है, speaking पे ध्यान देना पड़ेगा. It can communicate and articulate our thoughts and ideas. बिल्कुल. स्पीकिंग का दूसरा पार्ट क्या है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो आइडियाज होते हैं,
उसको हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, आर्टिकुलेट कर पाते हैं। इट गिव्स द इंडिविजुअल द एबिलिटी टू लीड। बिल्कुल, एबिलिटी टू लीड का मतलब है अगर कोई अच्छा वक्ता है, डेफिनेटली आपने देखा होगा वो लीड करता है। 10 लोग हैं, 10 में से जो बहुत अच्छा बोलता है वो आगे हो जाता है, जो बहुत अच्छा बोलता है वो आगे हो जाता है। तो इट गिव्स द इंडिविजुअल द एबिलिटी टू लीड। इट इम्प्रूव्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारे क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स इन कैरियर एडवांसमेंट, हमारे कैरियर एडवांसमेंट में मदद करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू रिसीव रिकॉग्निशन। रिसीव रिकॉग्निशन का मतलब है कि पहचान बनाने में भी मदद करता है। अगर आप बहुत अच्छे वक्ता है तो लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, है ना। सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू, in my areas I would like to tell you, in my areas I am a एंकर आल्सो। एक प्रोग्राम इज हैविंग देयर, कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है जहां से 5 to 10,000 पीपल आर गैदरिंग देयर, है ना। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम का संचालन करने के लिए मुझे बुलाया जाता है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो, आई एम ट्रूली टेलिंग यू। तो अगर आप अच्छे वक्ता हैं, अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो आपको लोग सुनते हैं, है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम में कई बार प्रोफेशनली बुलाते हैं, दे पे मी आई जस्ट आई एम टेलिंग टू यू, आई एम, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, अगर आप अच्छे वक्ता है, स्पीकर है, तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, है ना। मेरे चाहे वो गवर्नमेंट के कार्यक्रम हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कार्यक्रम हो, बड़े बड़े अगर प्रोग्राम हो रहे हैं, एंकरिंग करना है या कुछ वक्ता के रूप में, स्पीकर के रूप में, मोटिवेशन के रूप में, दे इनवाइट मी एंड आई गो इन एंड डिलीवर स्पीच, आई एम टेलिंग टुडे, है ना। आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पर भी है ना, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, जिसमें मेरे इसकी आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये है स्पीकिंग के बेनिफिट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग? रीडिंग आप देख सकते हैं, रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल एट एवरी वॉक ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, स्पेशली इन schools, colleges and at the workplace for people occupying administrative post। स्टूडेंट, रीडिंग का भी अपना महत्व है। रीडिंग का अपना महत्व क्या है? आपको हर जगह क्या है अपनी जिंदगी में, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्क प्लेस पे हो, किसी पोस्ट पे हो, आपको रीडिंग होगी। आपको अगर मान लो वर्क प्लेस पे हैं तो आपको कोई नोटिस पढ़ना होगा, कोई लेटर पढ़ना होगा, है ना। कुछ ना कुछ, आप स्कूल में हैं तो आपको किताबें पढ़ना होगी, कॉलेज में आपको किताबें पढ़ना होगी, एवरीवेयर यू हैव टू। तो सारी स्किल का अपना महत्व है। रीडिंग आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रीडिंग, उसके बाद इट इज अ रिसेप्टिव और इनपुट स्किल। रीडिंग कैसा है? रिसेप्टिव और इनपुट स्किल। कैसे? ये जैसे आप लोग ये बोर्ड पे ये जो स्लाइड पे लिखा हुआ पीपीटी पे, आप इसको क्या करेंगे? आप रीड करेंगे तो ये इनपुट कर रहे हैं आप, आउटपुट नहीं है, रिसेप्टिव है ये। दिस इज बिकॉज रीडिंग इज अ मीडियम ऑफ डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन, है ना। ये कैसा है? डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की खोज का एक माध्यम है। टू एक्सपेंड वंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, टू एक्सपेंड वंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड। तो यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसमें इंफॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग होता है उससे हम अपने नॉलेज को बढ़ावा देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट को हम समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट रीडिंग टू द माइंड इज व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको स्टार लगा लीजिए, इसको अलग से नोट कर लीजिए। रीडिंग टू द माइंड इज व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। यानी एक्सरसाइज जो काम हमारी बॉडी के लिए करती है, वही काम रीडिंग हमारे माइंड के लिए करती है। क्योंकि हम जितना रीड करते हैं, माइंड को उतना एक्टिव होना पड़ता है, माइंड को उतना अंडरस्टैंड करना पड़ता है। दैट इज व्हाई रीडिंग टू द माइंड इज व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। इतना महत्व है, हमारे ब्रेन को डेवलप करता है, माइंड को डेवलप करता है। बॉडी के लिए जितनी एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है, रीडिंग उतनी माइंड के लिए है। समझ में आया? ठीक है। रीडिंग इंडीड मेक्स अ मैन कंप्लीट, है ना। कंप्लीट कौन कह रहा है? ये फ्रांसिस बेकर ने भी कहा, रीडिंग मेक द फुल मैन। फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट इन वंस लाइफ, दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी अ गुड रीडर। बिल्कुल, अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे
रीडर आपको बनना चाहिए। इट इज प्रूवन दैट SQ3, ये देखिए SQ3R, ये प्रूव है, क्या प्रूव है? मेथड SQ3R, यानी सर्वे, क्वेश्चन, है ना, SQ, और 3R, है ना, 3R है, क्या क्या है? सर्वे, क्वेश्चन, फिर रीड, रिसाइट और रिव्यू। 3R है ना, ये SQ3R आर द टेक्निक्स टू शार्पन द टेक्स्ट बुक रीडिंग स्किल्स। ये देखिए, तो क्या करना आपको, ये जो टेक्निक है, आपको सर्वे करना है, क्वेश्चन करना है, फिर आपको रीड करना है, रिसाइट करना। रीड का मतलब उसको बोलना, रिसाइट का मतलब, अगेन मैं ये बार बार बोलता हूं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है वो रिसाइट करना शुरू करें, यानी बोल बोल के पढ़ना शुरू करें। रीड बाय स्पीकिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, तो आपको बोल बोल के पढ़ना शुरू करना चाहिए, है ना। तो रीड, रिसाइट और फिर रिव्यू करें उसको। तो ये टेक्निक्स, क्या रिव्यू कि क्या लिखा है, यानी अंडरस्टैंड करें, तो ये आपको जो है समझने में मदद करेगा। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग की देखें तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकेबलरी इंप्रूव करने में मदद करेगा। इट इंक्रीजेस वंस क्रिएटिविटी, बिल्कुल क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। रीडिंग से आप क्या, इट प्लेज अ वाइटर रोल इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा रीडिंग। इट शोज वंस न्यू थिंग्स एंड कैन ब्रॉडन देयर इंटरेस्ट, नई नई चीजें हमें पता चलती है और हमारे इंटरेस्ट को ब्रॉड करेगा। रीडिंग डेवलप्स द ह्यूमन माइंड को डेवलप करेगा। इट हेल्प्स टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, बिल्कुल नई नई चीजें, किताबों में अनेकों चीजें लिखी रहती है, हमें पता चलेगी। रीडिंग डेवलप्स द इमेजिनेशन, रीडिंग हमें क्या है, इमेजिनेशन को हमारे डेवलप करती है। रीडिंग इज एसेंशियल इन डेवलपिंग अ गुड सेल्फ इमेज, हमारी अच्छी इमेज को बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि अगर आप गुड अच्छे रीडर हैं, आपको आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आप अगर अच्छा रीड करते हैं, अगेन एंड अगेन आप अच्छी किताबें, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, आप अगर रीड करते हैं, अंदर से ऑटोमेटिकली आपका व्यक्तित्व गहरा होते चले जाएगा। आपकी स्पीकिंग में, आपके लिसनिंग में, आपके व्यवहार में ऑटोमेटिकली वो गहराई आते चले जाएगी। फॉलो मी, आई एम टेलिंग यू, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आई एम गिविंग यू द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। दीज 4 स्किल्स आर सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। अगेन लेट मी टेल यू, रीडिंग को बढ़ावा दीजिए। रीडिंग जितना हो सके आपके माइंड को शार्प करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को शार्प करेगा, आपकी अपनी सेल्फ, क्योंकि आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपका जो है ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, आपका जो है आपकी डिस्कवरी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, थॉट प्रोसेस आपकी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ इमेज बढ़ने लग जाएगी। सो दीज 4 स्किल्स आर दी सीक्रेट्स आई एम टेलिंग यू, है ना। मैं 5 से 10 हजार लोगों के बीच में एंकरिंग करता हूँ, बड़े बड़े मंचों का संचालन करता हूँ, तो सिर्फ इन 4 स्किल्स के दम पे आई एम टेलिंग टू यू, आई एम ट्रूली टेलिंग यू, ठीक है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। अब हम बात करते हैं राइटिंग की। सी, राइटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वंस डेवलपमेंट, है ना। किसी के भी लिए क्या है, राइटिंग का अपना महत्व है। वी यूज रिटन कम्युनिकेशन, रिटन भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है, टू एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस, बिल्कुल अलग अलग मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इट गिव्स एक्सेस टू नॉलेज, बिल्कुल ये भी क्या है, रिटन कम्युनिकेशन भी क्या है, ये राइटिंग भी क्या है, नॉलेज को एक्सेस करने में मदद करता है। It is a form of communication where an individual puts his her feelings and ideas on paper, यानी ये भी कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, जहां पर कोई इंडिविजुअल क्या है, हीज या हर कोई भी हो, वो अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को पेपर पर लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेस देयर नॉलेज, अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, and believes into convincing arguments and conveys meaning through well constructed text, बिल्कुल। तो अपने आइडियाज को, अपने नॉलेज को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, जो मीनिंग कहना चाहते हैं उसको क्या है, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट में क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं और लिखते हैं, है ना। कोई ऐसे लिख रहा है, जैसे निबंध लिख रहा है, क्या है वो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पीपीटी बनाई है, तो मैं अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊं, इसलिए मैंने उसको जो है यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में बहुत सिस्टमेटिक लेने का प्रयास किया है। जो स्लाइड है ना, जो जो पॉइंट आपको समझा पाऊं उसको,
तो इस तरीके से कोई नॉवेल लिख रहा है उसको बहुत अच्छे से वो कंस्ट्रक्ट करेगा, कोई पोइट्री लिख रहा है उसको उस फ्रेम में वो कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना, या फिर कोई ड्रामा है तो उसको उस पैटर्न में लिखेगा। तो यानी अपने आइडियाज को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। राइटिंग स्किल प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स। बिल्कुल हर प्रोफेशनल में राइटिंग स्किल का अपना महत्व है। बेनिफिट क्या है इसके? इट प्रोवाइड्स अस विद अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ फ्यूचर। बिल्कुल रिटन स्किल्स जो है परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखना है। दिस इज अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ध्यान रखना। इट इज इंपॉर्टेंट एज लीगल प्रूफ, है ना, ये क्या है? लीगल प्रूफ होता है, ध्यान रखना है। इट हेल्प्स टू गेट जॉब, नई जॉब को प्राप्त करने में मदद करता है। इट वाइडन्स वंस वोकेबलरी, है ना, वन वोकेबलरी को बढ़ावा देता है। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। इट हेल्प्स अस टू रिकवर अवर मेमोरीज। बिल्कुल अगर रिटर्न फॉर्म में कुछ है तो हमारी मेमोरीज को रिकवर कर सकते हैं हमें, है ना। कोई चीज आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने लिखी है और आपके पास में लिखा हुआ है तो आप उसको मेमोरीज को याद कर सकते हैं। तो ये था 4 स्किल्स हैं, ये सारी 4 स्किल जो आप देख सकते हैं, है ना। ऑल 4 स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके, चलिए। सी, चलिए, बेनिफिट्स ये हम देख चुके हैं। लैंग्वेज वेराइटीज, हम लोग आज बात करते हैं लैंग्वेज वेराइटीज की। तो लैंग्वेज वेराइटीज में क्या है? इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज वेराइटी आल्सो कॉल्ड लेक्ट इज अ है ना, सोशियो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज वेराइटीज आल्सो कॉल्ड lect is a general term for any distinctive form of a language or linguistic expression। तो यहाँ पर देखिए सोशो लिंग्विस्टिक या लेक्ट, है ना, तो ये जो हम देखते हैं, तो लैंग्वेज वैरायटी क्या है? एक तरीके से ये किसी भी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक में एक्सप्रेशन का एक भाग है ना, अलग अलग, है ना। इसमें क्या होता है, लिंग्विस्ट या जो लिंग्विस्ट होते हैं, जो भाषा के जानकार होते हैं, commonly use language variety or simply variety as a cover term for any of the overlapping subcategories of a language, including लैंग्वेज वैराइटीज में ये जो लिंग्विस्ट होते हैं वो बहुत सारी चीजों को कवर करके इसमें टर्म को मिलाते हैं। जैसे डायलेक्ट भी इसमें आएगा, रजिस्टर भी इसमें आएगा, जार्गोन आएगा, इडियोलेक्ट आएगा, एटसेट्रा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज की अपने अलग अलग यूज होते हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, ज्योग्राफी के अनुसार, है ना, या इडियोलेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए सिंपली लेट मी कुछ एग्जांपल आप देखिए। कमाल की बात क्या है कि इस दुनिया में 800 करोड़ या 800 प्लस करोड़ पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। और आप सोच सकते हैं इतने बड़े रचनाकार के 800 से ज्यादा, 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक के वोकल कॉर्ड, सबके साउंड अलग है। अभी मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर कोई और टीचर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी और टीचर की आवाज है। आपने अचानक मान लिया आपके 8-10 दोस्त हैं, बहुत अच्छे करीबी हैं, और आप फोन करते हैं, है ना, या आपने किसी के चलो रिश्तेदारी में आपने फोन किया, लगाया किसी और का था लेकिन रिसीव किसी और ने किया, अंकल को लगाया लेकिन उनके भैया ने उठाया, बड़े भैया ने, तो आप पहचान लेंगे कि बड़े भैया ने। तो कहने का मतलब है सबका अपना लैंग्वेज होता है। दूसरा, डायलेक्ट में हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश की बात करें तो जो ब्रिटिशर है उनका कम्युनिकेशन अलग है, जो है एक्सेंट या एसेंट आप कहते हैं, अमेरिका का अलग है, हम लोग इंडियंस का अलग है। इंग्लिश है लेकिन बोलने का लहजा अलग हो जाता है ना। या फिर हम रजिस्टर हम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। लैंग्वेज तो है ही वो, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी अलग है, आप में लॉ की टर्मिनोलॉजी अलग मिलेगी, इकोनॉमी की अलग मिलेगी, बैंकिंग की अलग मिलेगी। तो ये क्या है, ये सब लैंग्वेज वेराइटीज है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करें, स्टैंडर्ड इंग्लिश इज अ कंट्रोवर्शियल टर्म फॉर अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज रिटन एंड स्पोकन बाय एजुकेटेड यूजर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड, तो ये जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश की हम लोग बात करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होता है? हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है,
इसमें ऐसा माना जाता है कि या तो ये रिटन है या स्पोकन है एजुकेटेड यूजर्स के द्वारा। जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिखा है, एक व्यक्ति जिसको कम इंग्लिश आती है, थोड़ा सा कम जानता है, वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा कि सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है या वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन एक जो एजुकेटेड यूजर होगा, जो थोड़ा सा लैंग्वेज का जानकार है, वो थोड़ा सा उसका यूज करने का तरीका बिल्कुल ये होगा, ठीक होगा। फॉर सम देखिए, लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड इंग्लिश इज अ सिनोनिम फॉर गुड और करेक्ट इंग्लिश। बिल्कुल, स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, एक तरीके से स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो सिनोनिम है किसका, अच्छी या करेक्ट इंग्लिश का। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यानी अभी हम जो लिखा है यहाँ पे आपके सामने, ये भी स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना, और जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ये भी स्टैंडर्ड है। आई एम ट्राइंग टू स्पीक व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग, जो आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है। और जो मैं बोल रहा हूं हिंदी या इंग्लिश, बहुत ही लैंग्वेजेस आर स्टैंडर्ड बिकॉज आई एम ट्राइंग, ऐसा उसको बिल्कुल रफ में यूज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल रफ नहीं है। बिल्कुल आपको फॉर्मली आई एम स्पीकिंग, है ना, फॉर्मल वे में आई एम स्पीकिंग, दैट इज क्या है, स्टैंडर्ड इंग्लिश। Others use the term to refer to a specific geographical dialect of English or dialect favored by the most powerful and prestigious prestigious है ना, ये देखिए prestigious social group, जो आपको ध्यान रखना है, prestigious। See, varieties of language develop for a number of reasons। अब ये जो देखिए कैसे क्या क्या रीजन है जिससे हमारी लैंग्वेज अलग अलग तरीके से हमें पता चलती है। एक तो डिफरेंस कैन बी कम अबाउट फॉर जियोग्राफिकल रीजन। बिल्कुल, एक तो जियोग्राफिकल रीजन होता है ना। आप इंडिया में इतनी जियोग्राफिकल है, जैसे हिंदी है, तो हमारे जो पूरे पूरे भारत में अलग अलग एरियाज रीजन से, भारत पूरा है ना, हमारी मातृभूमि एक है, लेकिन हम समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात कर लीजिए आप, तो साउथ में थोड़ा सा टोन अलग हो जाएगी, नॉर्थ में अलग हो जाएगी, ईस्ट नॉर्थ में अलग हो जाएगी, ऐसा। पीपल हु लिव इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज often develop distinct dialects, variations of standard English। बिल्कुल, तो क्या है, जो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़े से डिस्टिंक्टिव डायलेक्ट्स को या बोली को डेवलप कर लेते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से। बिल्कुल आपको पता है, हम इंडिया में रहते हैं, इसको समझने तो आसान है हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में है ना, हर 5-7 किलोमीटर पे हर एक, आप देख सकते हैं, लैंग्वेज बदल जाती है। Those who belong to a specific group, often academic or professionals, tend to adopt a jargon। बिल्कुल, जो एकेडमिक से या जो एकेडमिक से या जो प्रोफेशनल है ना, जो प्रोफेशनल वो क्या करते हैं, जार्गोन को अडॉप्ट करते हैं। दैट इज नोन टू एंड अंडरस्टैंड बाय ओनली मेंबर्स ऑफ दैट सेलेक्ट ग्रुप। ये क्या होता है, जार्गोन क्या होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। केवल उन्हीं ग्रुप के द्वारा समझ में उनको आता है। जैसे मेडिकल में आप जाएंगे, डॉक्टर ने नर्स को कुछ कहा या डॉक्टर ने उनके जो हेल्पर है उनसे कहा कि ये दवाई लिखो, ये बात है, हम बस सुन रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया, वो सब जो है वो आपस में बात करे और समझ रहे हैं। तो प्रोफेशनल होते हैं वो उनकी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। Even individuals develop idiolects। Individual develops their own specific way of speaking। Idiolects क्या होता है, इडियोलेक्स क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण, इस पे आपको काम करना है। इडियोलेक्स, इस पे आपको काम करना है, यानी देयर ओन, ये देखिए, देयर ओन स्पेसिफिक वे ऑफ स्पीकिंग। मेरा जो वे ऑफ स्पीकिंग है, ये मेरा अपना है, दुनिया में किसी और का नहीं होगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा जो इडियोलेक्ट है वो दुनिया में किसी और का नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आपका अपना जो इडियोलेक्ट है, यानी आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो साउंड है, आपका जो पीच है, आपका जो हैबिट्स है बोलने का, जो वे ऑफ स्पीकिंग है ना, वो किसी और का नहीं है। यानी मेरा जो इंटरेक्शन का तरीका है, कम्युनिकेशन का जो तरीका है, वो किसी और का नहीं है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, अपनी जगह है, लेकिन इडियोलेक्ट क्या है, स्पेसिफिक वे ऑफ स्पीकिंग है ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये इडियोलेक्ट्स है। हर एक, यहाँ तक हर इंसान का अपना तरीका होता है। कुछ लोग कम बोलना पसंद करते हैं, कुछ ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं। ये सब क्या है, ये इडियोलेक्ट है। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ लोग 2-4 सेंटेंस में, है ना, आप देखेंगे
फिल्मों में आप देख सकते हैं सबका, अजय देवगन साहब का अलग एडियोलेक्ट है, अमिताभ बच्चन जी का अलग एडियोलेक्ट है, अक्षय कुमार जी का अलग एडियोलेक्ट है, शाहरुख खान जी का अलग एडियोलेक्ट है ना, प्रियंका चोपड़ा का अलग एडियोलेक्ट, सबका अपना अपना एडियोलेक्ट है। एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट एडियोलेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ये डायलेक्ट हम लोग देख लेते हैं। आवाज में माय वॉइस इज कमिंग, वंस अगेन लेट मी कंफर्म, माय वॉइस इज कमिंग, यस और नो? एम आई ऑडिबल? ठीक है। इज देयर एनी इशू इन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग? कुछ दिक्कत है? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। Is there any problem in listening? Is it proper? Please confirm me. Please confirm me. Is it proper? ओके सी। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन के साथ में आज की क्लास को हम लोग ये करेंगे, क्योंकि वेट चल। तो ये इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो रिकॉर्डिंग में भी आपको काम आएगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में हमने आज की क्लास को हमने जो देखा है, मैं क्विक रिवीजन के साथ में इसको है ना करता हूं उसका। तो 4 स्किल्स की हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज स्किल्स में। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर द 4 स्किल्स। आप देख सकते हैं, है ना, ये देखिए, लिसनिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग का LSR कहते हैं। ये चारों स्किल्स हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बोलने के लिए इंटरपर्सनल जो इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें काम आती है चारों स्किल्स। चारों स्किल्स जो है ये आपको इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में काम आती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहां देख सकते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई भी व्यक्ति जो होता है, स्किल्स आर ऑफन एक्वायर्ड। तो किसमें क्या होता है कि जो है एक्वायर्ड इन द ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, मतलब ये एक ऑर्डर है। आपको सबसे पहले कोई भी व्यक्ति कोई भाषा सीखता है ना, तो उसको सबसे पहले क्या है, वो लिसनिंग सीखता है, उसके बाद में स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, और फोर्थ नंबर पे जो है वो राइटिंग है। तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर दी 4 स्किल्स। हमने देखा फ्रांसिस बेकन ने भी कहा है कि रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग है ना, आपको एक व्यक्ति को कंप्लीट बनाता है, कॉन्फ्रेंस यानी स्पीकिंग जो होता है वो रेडी बनाता है, लेकिन राइटिंग से आप एग्जैक्ट हो जाते हैं। इनपुट्स में लिसनिंग को हम इनपुट करते हैं। अगेन लिसन का मतलब होता है डिकोड करना मीनिंग को। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो उसको मीनिंग को आप समझ जाएं। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो केवल हियरिंग होगा। रीडिंग का भी मतलब तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप जो रिटर्न फॉर्म में है उसको आप जो रीड कर रहे हैं वो आपको क्या आना चाहिए, उसके मीनिंग को डिकोड करते आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब जब आप लिसनिंग और रीडिंग अच्छा करते हैं तो आपके आउटपुट्स, स्पीकिंग बहुत अच्छा होता है। स्पीकिंग में हम इनकोड करते हैं, यानी जो चीज हम लोग बोलने जा रहे हैं अपने थॉट्स और कॉन्सेप्ट, वो ओरल फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। राइटिंग में हम उसको वही थॉट्स और कॉन्सेप्ट को रिटर्न फॉर्म में हम लोग करते हैं। ध्यान रखना है, रिटर्न फॉर्म में, है ना, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेलिंग ये आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रिटर्न फॉर्म में। लिसनिंग की हमने बात करी थी, तो लिसनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड द साउंड, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना है ना। लिसनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग द साउंड है। गुड लिसनिंग कैसे बिल्ड होगा, अटेंशन से और एडजस्टमेंट से आपको। सो हमें लिसनिंग पे बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना है। लिसनिंग क्या है, हमारा इमोशनल है, लिसनिंग इमोशनल है, और जो हियरिंग है वो फिजिकल होता है। क्योंकि हियरिंग में केवल आपको आवाज सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, और इसलिए इसको बिगर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं, है ना, हमने कुछ आपने सुना तो उसको क्या ब्रेन के द्वारा जो है वो
ब्रेन के द्वारा उसको जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, मीनिंग को समझा जाता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। ये हमने लिसनिंग में ये सारी बातें हमने देखी, बेनिफिट्स हमने देखे हैं। बिल्कुल कोई व्यक्ति आपकी बात को सुन के एग्री कर रहा नहीं कर रहा ये पता चल जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है प्रॉपर अगर लिसनिंग होगी तो, है ना। और इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यूज, हम दूसरों के व्यूज को समझने में मदद करते हैं। एंड आल्सो टू डिस्कवर द फ्लॉज इन आवर ओन पोजीशन। इट हेल्प्स an individual to acquire the necessary skills through learning with the help of these he she, है ना। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। स्पीकिंग में हम देखें तो स्पीकिंग क्या है? It is an act of making vocal sounds. It is an act of making vocal sounds. We can understand that speaking means nothing but to converse or to express one's thoughts and feeling in spoken language. आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पीकिंग से आप किसी भी आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ये स्पीकिंग का महत्व है। अपने थॉट्स को, विचारों को हम ओरल फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। बेनिफिट हम देखें तो स्पीकिंग हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, आप स्पीकिंग बहुत अच्छा होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने थॉट्स को, आइडियाज को आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। इंडिविजुअल को लीड करने में मदद करता है। अच्छे वक्ता जो होते हैं वो लीडर होते हैं। इट गिव्स द इंडिविजुअल एबिलिटी टू लीड। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमारे बढ़ाता है, करियर एडवांसमेंट में काम आता है। और इसलिए स्पोकन लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। हमारी पहचान को बढ़ावा देता है। रीडिंग क्या करता है? रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल एट एवरी वॉक ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी हमें, वर्क प्लेस में हमें रीडिंग करना होता है। और रीडिंग में क्या होता है, ये एक तरीके की ये रिसेप्टिव या इनपुट स्किल है। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए उतना ही। और इससे हमारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है, हमें नई नई चीजें सीखने में मदद करता है। जैसे एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है ना, एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही रीडिंग हमारे माइंड के लिए जरूरी है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो रीडिंग इंडीड मेक्स मैन कंप्लीट, आपको ध्यान रखना है। और इसमें इट इज ये प्रूवन दैट SQ3R, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। SQ3R का पूरा फॉर्म क्या है? सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो ये आपको एक कंप्लीट आपकी टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ध्यान रखना। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग की बात करें तो वोकेबलरी बढ़ाता है आपका, है ना। फिर क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। रीडिंग आपके इंटरेस्ट को ब्रॉड करता है। फिर आपकी ह्यूमन माइंड को डेवलप करता है, नई नई थिंग आइडियाज को डिस्कवर करता है। और इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है, सेल्फ इमेज को बढ़ाता है। ये ध्यान रखना है। राइटिंग से क्या होता है? क्रूशियल रोल इन वंस डेवलपमेंट। रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके नॉलेज को एक्सेस करने में मदद करता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग को लिख करके आप दे सकते हैं। कुछ बातें हम नहीं बोल पाते तो आप लिख अपने आइडियाज को लिख सकते हैं। तो ये किसी भी मैसेज को कन्वे करने में एक कंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट में हम कन्वे कर सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे में, है ना। कोई स्टोरी लिख रहा है तो बहुत अच्छा से कंस्ट्रक्ट कर सकता है टेक्स्ट, है ना। पोएट्री लिखना है तो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है उस व्यवस्थित वे में, रिटर्न फॉर्म में होता है। तो ये सारे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बेनिफिट्स हम देखें तो बिल्कुल ये रिकॉर्ड या फ्यूचर रेफरेंस होता है। अगर कोई चीज आपने एक बार लिख दी वो हमेशा लिखी रहेगी अगर आपने व्यवस्थित लिखा है। लीगल प्रूफ होता है रिटर्न फॉर्म, आपको जॉब अच्छी मिलती है ना। आपकी वोकेबलरी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी मेमोरीज के लिए काम आता है अगर कोई चीज पहले से लिखी है। ये सारी बातें हमने लैंग्वेज स्किल्स के साथ में हमने देखी है। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में।